ये ओपन सोर्स है, इसके आपको किसी को लाइसेंसिंग फीस नहीं देनी है. दिस इज ऑल फ्री. एंटायर, not just your application but entire, what is the total size, how much spending happens. That Facebook आपने उन्होंने भी सोचा होगा और मेरे जैसे लोगों ने भी सोचा था, राइट. जो आज आप वो तो 10 रुपए लगा के 300 रुपए की सेल हो रही है, तो आपको मॉडल मिल गया, फिर आप उसको स्केल अप कर सकते हो, फिर आप उसको बढ़ा सकते हो सेल्स को, राइट. ओके, सो वी हैव मेंशन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फंडिंग at Startup Lane's website. Good afternoon, everyone. I welcome all of you in Ask Me Anything session with our founder and CEO, Mr. Shishir Gupta. In this session, you can ask any type of question related to funding, investment, customer acquisition, legal consultation, and how can careers be created through startups, anything. So Shishir sir, over to you now. Thank you. Thanks for joining in. My name is Shishir Gupta. I'm the founder and CEO of Startup Lanes. I would be happy to take up all your questions. Who's asking first? Yeah. Hi, Shishir. Suraj here from Travo CRM. Hi, Suraj. Yeah. Can I just so I just wanted to understand with the TAM, SAM, and SOM. So I have a link where I have got very precise market, but I'm not able to judge whether it is TAM or SAM or SOM. So shall I share the link, or what should I do? Yeah, you can tell me about what is the product, what are you making? Okay, so the product it's a SaaS based product. It's a vertical CRM for the travel companies. So I've got a link from Statista. It's like a business analyst website. Where it says that the number of travel companies are worldwide are 1,96,000 something, roughly 2 lakh companies. So the CRM is built for the travel companies, and I've got the number of travel companies, but those are worldwide. So it's my TAM or SAM or SOM. It's actually none of these. Number of companies cannot become your TAM, SAM, SOM. You need to find out how much is the market size in terms of money, dollars or INR. Yeah. Sorry. Yeah. So, like I will be multiplying with the pricing, of course. But what should I consider it? No, you don't have to multiply with the pricing. Okay. You have to check your competitors, how much money your competitors are earning, or what is the total spend on this particular travel technology, right? Entire, not just your application, but entire, what is the total size, how much spending happens, that becomes the total addressable market. Okay, understood. Correct? Yeah. Then from the total market, you need to find out how much market can you obtain, right? And what is the market size that you can serve. Getting my point? Yeah. So I'll give you a very simple example that will be easy to understand. Suppose you open up a Chinese restaurant, right? Okay. Now you need to see how many people eat food. That becomes your total from restaurants. That becomes your TAM, right? Okay. Then how many people are there who are eating Chinese foods? Right? That is your obtainable market, because you're Chinese, you're serving Chinese food. Nobody, and that too, suppose non-veg. So vegetarians have to be kept out of it, right? So that is the market which is obtainable. That is maximum. And then how much, suppose you can serve only in 3 kilometers area. So that is your serviceable market. What is the total size in 3 kilometers? That becomes your serviceable. So this is a filter. TAM is largest. Then, after TAM, obtainable market is a little bit filtered, and then totally filtration comes up when you have serviceable. Understood. Yes. Okay. All right. Fine. Thank you. Pleasure talking to you. Yeah. Thank you. So next we have Ms. Kamya. Ma'am, please come forward and ask your question. Hi, Shishir. Hi, Kamya.
So, Shishir, actually, I am in a job since last almost 10-12 years, but कभी भी मेरे को ये interesting नहीं लगा है, केवल just to pay my bills वाला concept है कि मैं कर रही हूँ. And 2 years back, I really found a business idea which I thought would really do wonders. It was about selling lamps. तो पहले मैंने टेस्ट किया इसको, मतलब कुछ बनाए, 10-12 बनाए और फेसबुक वगैरह में डाली, लोगों की अच्छे डिमांड्स आए, फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने ले लिए. फिर मुझे लगा कि अगर मैं इसको अमेज़न पे डालती हूँ तो अगर एक दिन का एक दो भी बिकेंगे तो ठीक है, एटलीस्ट पिकअप करेगा. बट प्रॉब्लम क्या आया, एक जो मैंने, बिकॉज आई वाज न्यू इन दिस बिजनेस, जो मैंने कंसिडर नहीं किया फैक्टर वाज पैकेजिंग. अमेज़न ने ठीक से पैकेज करके नहीं दिया. मैंने ये भी देखा कि वो लोग, मतलब डिमांड तो आया था, लोगों ने ऑर्डर भी किया अमेज़न से, बट क्योंकि उन्होंने ठीक से डिलीवर नहीं किया, थोड़ा सा वो डेलिकेट होता है लैम्प शेड, तो वो ठीक से गया नहीं और इसकी वजह से रिटर्न्स आने लग गए. और दैट इज हाउ आई एंडेड अप कि प्रोडक्ट्स गया नहीं. प्लस जो मैं फ्लोर लैम्प्स में भी डील करती थी, तो आइडिया वाज कि पहले हम टेबल लैम्प से देंगे, क्योंकि फ्लोर लैम्प्स अमेज़न पे देने का मतलब था थोड़ा ज्यादा उसको कस्टमाइज बनाना पड़ता, मतलब किसी से मुझे टाई अप करना होता कि वो असेंबल कर सके. वो सब मैंने सेकंड पार्ट के लिए रखा, बट फर्स्ट पार्ट पे ही गाड़ी अटक गई तो फिर रह गया. अब भी अमेज़न से बात कर रही हूँ, वो बोलते हैं कि हमारी पॉलिसी सब कुछ क्लियर है कि हमारा हो ही नहीं सकता है कि हम लूज पैकेजिंग में दे दे. तो जैसे नहीं हम कपड़े हमारे लूज पैकेट में आते हैं, वैसे वो लोग डिलीवर करवा रहे थे. इस वजह से वो फ्लॉप हो गया, मतलब ठीक से डिलीवर नहीं किया. दैट्स द रीजन मेन रह गया. तो व्हाट्स द सॉल्यूशन, क्या करना चाहिए, कैसे अब मैं प्रोसीड करूं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप योर डिपेंडेंसी बना रहे हो अमेज़न के ऊपर. डू नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन अमेज़न. व्हाट यू हैव टू डू इज, आप अपनी वेबसाइट बनाओ और उसके वर्डप्रेस की साइट बना लो, इजीली बन जाएगी. आपको नहीं मिले तो आप मुझे बताना, वी विल गेट इट डन. उस पे आप एक वूकॉमर्स लगाओ, ई कॉमर्स वाला सिस्टम, राइट? वर्डप्रेस वूकॉमर्स, WOO कॉमर्स, राइट? ये सब ये ओपन सोर्स है, इसके आपको किसी को लाइसेंसिंग फीस नहीं देनी है. दिस इज ऑल फ्री. ओके, बस इसका सेटअप कराना है आपको. उसी में आपका पेमेंट गेटवे लग जाएगा और उसी के अंदर मैं आपको एक कंपनी बता रहा हूँ, शिपलाइट. ठीक है, ठीक है. हाँ, शिपलाइट या शिप रॉकेट, इनके साथ आप इंटीग्रेट कर लेंगे. पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट हो जाएगा. तो जब आपका वो कस्टमर आएगा साइट पे, पे करेगा, पे करने के बाद वो वापस साइट पे आएगा, आपका इनवॉइस उसको मिल जाएगा और वो पेड दिखाएगा वहां पर, जैसे अमेज़न में होता है, राइट? सो यू विल गेट योर ओन सिस्टम. पहली बात. दूसरी बात, व्हेन यू इंटीग्रेट विद शिपलाइट और शिप रॉकेट, इनका आगे कुरियर्स के साथ टाई अप होता है, बहुत सारी कुरियर्स के साथ. तो ये क्या करेंगे, आपका वहां से घर से पिकअप कराएंगे, जहां से भी आप वेयर हाउस, घर जो भी डालेंगे, दे विल गेट इट पिक्ड. और साथ के साथ ये लोग आपको इंश्योरेंस में भी हेल्प कर सकते हैं, तो आपका प्रोडक्ट इंश्योर्ड भी हो जाएगा. जब ये सारा सिस्टम हो गया, तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अमेज़न में, जब आप प्रोडक्ट डालते हो तो चांसेस होते हैं, अगर प्रोडक्ट आपने होमोजीनियस कोई ब्रांड डाल दिया तो सेल होगी बहुत सारी. आप समझना इस बात को अच्छे से. और अगर आपने कोई अपना नया प्रोडक्ट डाल दिया जो आपका ही है, उसकी सेल होती है कम. समझ रहे हैं? बिकॉज द रीजन इज उसकी डिमांड नहीं है, और अमेज़न डिमांड नहीं क्रिएट करेगा, किसी भी चीज की डिमांड आपको नहीं देगा. वो तो आपको बोलता है आप इंटरनल अमेज़न पे ऐड करो. तो बेटर ऑप्शन इज आप अपना साथ के साथ फेसबुक पे और गूगल पे एक एड कैंपेन सेटअप करेंगे, छोटा सा, ज्यादा नहीं, 1000-2000 रुपए का कैंपेन. और कीवर्ड्स बहुत सारे नहीं लेने हैं. अगर आपका लैम्प कीवर्ड है तो सिर्फ लैम्प कीवर्ड लेना है, राइट? नहीं तो आपका वो पैसे खत्म कर देगा गूगल और फेसबुक. केवल वही कीवर्ड लेना है जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो लैम्प है. अब फिर आप देखोगे कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकल आएगा. यानी 10 कस्टमर अगर आए और आपने 70 रुपए खर्चा किया, या मान लीजिए 100 रुपए खर्चा किया, तो आपका CAC आ गया 10 रुपए. एंड उससे आपकी सेल हो रही है अगर 300 रुपए की, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता लैम्प कितने का है, तो 10 रुपए लगा के 300 रुपए की सेल हो रही है, तो आपको मॉडल मिल गया. फिर आप उसको स्केल अप कर सकते हो, फिर आप उसको बढ़ा सकते हो सेल्स को, राइट? फिर एड कैंपेन का बजट बढ़ा देना, तो आपका काम चलता ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं. यू डोंट हैव टू लुक बैक, एंड देन यू कैन स्टार्ट एडिंग प्रोडक्ट लाइंस. बहुत बड़ा बिजनेस है. डोंट डिपेंड अपॉन अमेज़न फॉर इट.
राइट। D2C इज द की, सीधे अपने कंज्यूमर तक खुद अप्रोच करो, खुद कंज्यूमर को बताओ, टूट वूट जाएगा तो भी कंज्यूमर अगर आपके कांटेक्ट में है तो आप समझा सकते थे, पर अमेजोन कुछ नहीं करने देता, राइट। आपके पास फोन नंबर होगा कंज्यूमर का, रिप्लेसमेंट आप दे पाओगे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, प्लस यू कैन हैव इंश्योरेंस आल्सो। लाइक इतनी फ्रॉड वेबसाइट्स आ रही हैं, ट्रस्ट कैसे आएगा उनको पेमेंट करने से पहले? ट्रस्ट ऐसे आएगा कि आप पेमेंट गेटवे ले रहे हो तो पेमेंट गेटवे से भी ट्रस्ट आता है। पेमेंट गेटवे अगर आपने कोई लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, पर उनकी भी एक रिफंड पॉलिसी है कि आपका वो पेमेंट 7 दिन 8 दिन तक रिफंड करने का ऑप्शन देते हैं, राइट। जैसे पेयू आया था, पेयू ने 30 डेज का ऑप्शन दिया था। आप यू नीड टू चेक द पॉलिसीज नाउ, बिकॉज मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता हूँ इन लोगों से, मेरी टीम से जो करते हैं। सो वो कस्टमर को वो सेटिस्फेक्शन आ जाता है, और इतनी महंगी चीज नहीं है ना कि आप भेजेंगे नहीं, प्लस गिव योर कंप्लीट एड्रेस, सब कुछ दो आप उसके अंदर, सारे डिटेल्स दो, यू नो, डू नॉट। तो घर से ही चला रही हूँ एक्चुअली, तो घर का दे सकते हैं? बिल्कुल, आप घर का एड्रेस दे सकते हो। आपको एक कंपनी भी रजिस्टर करनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड, सो दैट कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाए, राइट। आपको करंट अकाउंट भी खोलना होगा, उसके अंदर सब कुछ होगा। खोल लिया, करंट अकाउंट खोल लिया, जीएसटी नंबर ले लिया था, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ही था। सोल प्रोप्राइटरशिप आपके जिंदगी के ना कलेश होता है, तलवार होती है सर पे, ये ना चाट पकौड़ी वालों के लिए बहुत सूटेबल होता है। एंड आई एम ट्राइंग टू यू नो जस्ट एक्सप्लेन, तो डोंट गो बाय माय वर्ड्स, बट मैं नहीं, हाँ छोटा बिजनेस करने वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बट बड़ा बिजनेस आपको करना है। अगर आपको मान लीजिए आपका प्रोडक्ट, आप बॉम्बे में बैठे हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ बैठे हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इफ यू आर इन दिल्ली एंड यू आर यू नो सेंडिंग समथिंग टू चेन्नई, और कोई छोटे से गांव से आपको कोयम्बतूर से केस मारता है या पुलिस कंप्लेन करता है, तो आपको वहां बार बार जाना पड़ेगा, राइट। छोटी सी चीज के लिए कुछ भी हो सकता है, राइट। सो नेवर गेट इनटू योर लायबिलिटीज एब्सोल्यूट। और इन केस आपने कोई बैंक से लोन लिया, कुछ लिया, पैसे नहीं चुका पाए, तो आपको एसेट्स देने पड़ेंगे, नहीं तो वो जेल में डाल देंगे, ऐसा होता है। तो प्रोप्राइटरशिप इज लाइक फॉर छोटे बिजनेसेस जिन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, वो कहते हैं हम जिम्मेदारी हमारी पूरी है, एंड दे कैन नॉट डू लार्ज बिजनेस। नेवर गेट इनटू पार्टनरशिप बिजनेस, नेवर गेट इनटू प्रोप्राइटरशिप। ऑलवेज गो फॉर LLP बना सकते हो अगर आपको कम कंप्लायंसेस चाहिए तो, और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो अच्छे से, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर बिजनेस, देन यू शुड ओनली गो अबाउट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट। ठीक है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आई वाज वाचिंग दिस वेब सीरीज आया ना TVF का, क्या नाम है उसका, एस्पिरेंट्स के बाद एक और आया है जो स्टूडेंट्स वाला है, कोटा फैक्ट्री। तो वो सेकंड वाले में देख रहा था, उसमें वो डायलॉग बोलता है भाई, उसको वो नया स्टार्टअप बनाता है अपना, जितेंद्र कुमार, उसको बोलते हैं कि ये आएगा नहीं, तो बंदा पूछता है क्यों नहीं आएगा, बोलता है इसने ना बैनर नहीं लगाया अपनी छत पे, अपने घर के आगे, इसने सेंटर के आगे वो लगवाया है प्रॉपर बोर्ड, जो साइन बोर्ड होता है महंगा वाला, दैट शोज कि उसके इरादे बहुत पक्के हैं। दैट इज अगेन यू नो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन। जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या सारे काम पक्के करते हैं ना, इट डिपेक्ट्स द कस्टमर कि ये ना टेम्परेरी वाले नहीं है, दे आर हियर टू स्टे इन द गेम। और कंपनी का आपका कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होना, 12,500 रुपए खर्चा है, प्लस कंपनी बिकम्स योर एसेट फॉर लाइफ। आप प्रोप्राइटरशिप को बेचना बड़ा मुश्किल है, एक्चुअली बिकती नहीं है, बट कंपनी आप बना लोगे तो कंपनी को आप कभी भी सेल कर लो, वो आपका एसेट है। एंड कंपनी स्ट्रक्चर कैन रेज, आप इक्विटी दे सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, शेयर्स अलॉट कर पाओगे एम्प्लॉइज को भी, लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। ठीक है, अगर आपको खुद ही डर लग रहा है कि शायद काम नहीं चलेगा, नहीं डर लग रहा है, बट नहीं समझ में आ रहा था, तो ठीक है, अभी आपने 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, 100% आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। इफ यू फॉलो द फॉर्मूला दैट आई हैव गिवन यू, राइट, बहुत अच्छी सेल्स होगी। एंड डू नॉट थिंक अबाउट ओनली हैंड टू माउथ, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मेरे को बस 50,000 या 1 लाख रुपए इनकम आ जाए, आपको 4-5 लाख 6 लाख रुपए इनकम इजीली आ जाएगी इफ यू स्केल अप इन द राइट वे। और उसके बाद थोड़ी भी आपका, जब आपको लगता है मॉडल सही चल गया है, कम टू अस, फिर आपकी फंडिंग करवाएंगे। ठीक है, और ये जो टाई अप वगैरह है थर्ड पार्टी से असेंबलिंग के लिए, लाइक हम ये पेपर फ्राई वगैरह से लेते हैं, तो कोई और आके असेंबल करता है, उसके लिए आई थिंक ये शिप लाइट या शिप रॉकेट से बात करूंगी, दे विल असिस्ट। नहीं, दे आर द कुरियर पार्टनर्स, वो कुछ नहीं है।
ये उठा के वो टेक कंपनीज हैं, तो वो आपकी शिपिंग करवाते हैं बस। अच्छा ठीक है, आप लोकल किसी ऐसे वहां पर ना जगह जगह वेंडर से बात कर लो, या सोसाइटीज में, सोसाइटीज के अंदर उनका अपना वो होता है। मैं जानती हूँ एक कंपनी है इजी फिक्स। ये लोग इजी फिक्स क्या करती है, इनके टाई अप्स हैं और ये असेंबल करवा देते हैं, इनके कारपेंटर्स पूरे इंडिया में हैं, तो मे बी ऐसे एक है माई गेट, जो गेट पे लगता है ना। माई गेट सोसाइटी को कंट्रोल करता है। सोसाइटी के अंदर एक कारपेंटर जरूर होगा, हर सोसाइटी में होता है। तो आप उस सोसाइटी के कारपेंटर को अगर इस्तेमाल करेंगे, एक तो आपको माई गेट के टाई अप में सारी ऑल इंडिया सोसाइटीज मिल जाएंगी। दूसरी बात, आपको सस्ता भी पड़ेगा, बिकॉज उनका वो कन्वेंशनल काम नहीं है, राइट? उनको तो सैलरी मिल ही रही है। अगर आप माई गेट के थ्रू उनका डेटा एक्वायर या ऐसा कुछ पार्टनरशिप कर पाओ, दैट विल हेल्प यू अलॉट, राइट? वो बात अलग है। देखिए, शुरू में सबको बहुत इश्यूज होंगे यू नो गेटिंग ऑल दीज पार्टनरशिप, बिकॉज जब तक हम बड़े नहीं बनते ना, तब तक लोग कंसिडर नहीं करते, तब तक वो आपको कुछ समझते नहीं है, तो वो शायद आपको वो बहुत तवज्जो, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। बट यू नीड टू फाइंड आउट द राइट काइंड ऑफ कनेक्ट्स। आपको राइट कनेक्ट मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं से बात बन जाएगी, राइट? ठीक है जिसर, आई थिंक फॉर अ स्टार्ट ठीक है, जो आपने पॉइंट्स बताए आई विल गो थ्रू देम, थोड़ा स्टडी करूंगी और फिर मे बी नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस होंगे तो पूछती हूँ आपसे। डेफिनेटली, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वन। So next we have Miss Soni Sethi. Ma'am, please come forward and ask your question. Okay. Yeah. Can you hear me now? Yes, loud and clear. Okay. So, hi, Shishir. I have started a small business of making handmade soaps and other personal care products. I have a pet grooming range also. I have a home grooming range. And I'm planning to get out more products also in the coming time. So right now I've been selling through my website, through e-commerce platforms, and through a lot of artisan markets, which I've been doing every Sunday. So I have a question, like I just started the business as a sole proprietorship, but now I want to expand it and I want to take it further. I want to apply for funding. I want to put up a pitch to different investors. So I want to know that, does a sole proprietor get any investment, any funding, or do I need to change the model of my business? I don't want a big amount or something. I just want to start slow and take it, stepwise. Okay, so we have mentioned the step-by-step process of funding at Startup Lane's website. It's a complete step-by-step process. I've seen all that. Okay. What I want to know is, I don't want to form a company. Is it okay if I go in for LLP and do it? No, LLP, you will not be able to allocate the shares to the investors, right? Okay. They become partners. And again, this is a different structure. Okay. So you need to necessarily form a private limited company so that they get the shares. Okay. Right. This is very important. If you want, we can do it for you. You can get it done through Startup Lanes. Cost is 12,500 rupees, except Punjab. All the states, 12,500. So like if I'm doing my business right now under GST as a sole proprietor, I have taken certain licenses because it's a personal grooming, skincare products that I'm doing. What will happen to those licenses then? Those licenses could be transferred, no? And will be transferred? There won't be any problem? Drugs and cosmetic licenses and all? See, because it is the same, there are legal methods. Your proprietorship could be acquired in that way, and all the license could be transferred. You need to check with an experienced chartered accountant for that. If you want, we can connect you in our system also. We have a lot of such people who can help you, but this is pretty possible. Okay, so I can just transfer it and the business will continue as it goes. Correct. Okay, that was my question. Yeah, another option is, one more very good option is, you can create a marketing company. In that particular marketing company, that company initially could just be becoming the marketing partner for your proprietorship, right? Later on, you can do the transfer as soon as whenever you feel, that this is the right time. So for some time, you can create a marketing company, a technology platform that comes into it.
So Right. how does one do that? I You have a website. you need to discuss this in detail with a chartered accountant who is experienced, right? Okay. If you want, we can connect you to somebody who is experienced and can help you in that. And Okay. that's not all. Creating a company will not ensure that you get the funding. Then you will be requiring pitch deck, projection, financial valuation, right? Yeah. Thereafter, you need to pitch. And as soon as these documents are ready, you can come to us. Right. Every Saturday we have funding pitches, so you can come and we can give you an exclusive demo day date. Okay. And that's And how. can you all do the pitching for me? No, that is We not. do that? We can, but investors won't accept that. Acha. We have to be there for the Right, pitching. because it is your idea, your business, your ownership. Correct. So they would like to understand what is your business acumen. People more than the business, they see how good the person is. Right? Okay. So obviously, as after this discussion, I can make out you won't find any difficulty in raising funds. Okay. That's my assurance. All you have to do is come to your company and meet you and meet the chartered accountant. I need to take an appointment. Yeah, Sanjana is there in the meeting. You can please drop your phone number in the chat or something, and Sanjana will connect you with the CA and will help you with other things also. Okay. And one more thing, like I'm the only person who's running the whole business right now. I'm looking at everything, product development, marketing, going, the packaging and this, everything, social media and all. So how do I, for a company, I will need few people more, right? So At what do least- you suggest? I at need least- another founder. Is it okay if I take a family member or? Yes, it is okay. You can give that person a minority stake, 0.1 or something. That's only for a formality or something. Okay. And you need two people. It's good if you have an active co-founder. That will be really good. But in case you are not getting an active co-founder, you should Yeah. have at least 2 to 3 people in the team. You can hire them and give them ESOP plan. That means you can pay them some salary and some equity, so that they also become owners of the company in long run. So if I have my spouse as my as a partner, that's okay. But he's not active in the business, like. No, he should be having some activity, because Okay. investors don't like silent partners. Okay. Any director who's silent. So a co-founder must be very, very active. There is a basic structure, in startups. There is a structure called hacker, hustler, and hipster. Hacker is the person who's technical person. Hustler is the kind of COO, CEO person who is multi-skilled, right? Okay. And hipster is something, the person who makes everything looks cool, the design guy. Okay. Right. So this is an ideal combination, which is since last 30-40 years, this has become a norm for startups. Okay. Right. And is there a if I want a small amount also, is it possible to get it, or? You should not take small amount, because business, you need to, as a startup, you need to target at least a valuation of $1 billion, 7,500 crore valuation. And in next 5 years, you should target 750 crore of revenue, right? Because that is the objective of investors. If your startup cannot grow this big, they will not invest, right? Because there are a hell lot of opportunities to invest in the startup world. So you have to think big necessarily. Startup cannot be a hand-to-mouth survival organization. Okay, thank you so much. Thank Pleasure. you. Yeah. Thank you. So Okay. next we have Mr. Manish Panwar. So please come forward and ask your question. And Sonam, I would request you to please send me your details in chat box. Thank you. Hey Manish. Yeah. Hello. Hi Shishir. Thanks for your time, and thank you Sanjana for arranging this. I'll just complete my thing in very quick. Shishir, I am a chartered accountant by profession and into the
corporate world since last 5 years. I've worked with Blue Dart and then Delivery. It was a startup. It take Series D, E, and F funding when I was there. Then I worked for FARI as an investor relations and performance reporting and MIS team. Now, since I have worked in a startup, so it was there in my mind since last 2.5 years to start something of my own. I have been working on some ideas, like 2-3 ideas I worked from start to beginning, and then something happened. The main crunch or the main drawback which I have ever faced is the tech domain, because I am having a finance background. I am having a CA qualification and having a background of that only. So I'll come to that in a later state. First, I will just want to share what I am thinking to plan and what I am thinking to develop with you. So just to take your inputs on that as well. In India, we are seeing that a lot of startups are coming into market, and in the next 5 years there will be an 2x or 5x number of startups in India, which has been till date as of now. So I want to prepare a tool or a platform or a dashboard where we can manage all the cap table and ESOPs for all the startups, say it early stage, say it's a grown up stage, say Series E, B, C, D, from their inception to till it becomes IPO and got listed. So with the platform and with the dashboard, I want to manage their all a cap table, from the founder stake, from the seed investor to the angel investor to the Series A, B, C, D, E, in a click of a button, where the CEO, CFO, and everyone who are the major stakeholders or even investors who want to see how the cap table is moving, how the dilution is getting, if some secondary or primary is happening, how it is happening. So just a click of a button with the help of the dashboard, it will be available. And for the ESOP, from right from the making the ESOP policy, since the ESOP grants of the option like vesting, unvesting, forfeiture, cancellation, its accounting in the books of accounts as per the Ind AS and all, everything will come up from the dashboard from the front end. And I know that there are some startups who are already in the market working on this concept, but still they're not very large number of startups which are into this space. Though I know there are 4 or 5 startups already doing this kind of business. And in the long run, my certainly to catch something else, and my the solution and the aim which is like I want slowly and gradually I want to eliminate manual Google working, Excel sheet working from the finance department. Everything should be connected to the next step, to the previous step, with the help of a trail, and where we cannot depend on some Excel file or some single person and to like Shishir will update it and then I'll get the data. It should be an open source for everyone who are the stakeholders or who are the team members, and they are just working on the dashboard and getting each and every kind of reports and each and every kind of information they want. It will help the investors, the stakeholders, the management, the finance team, the HR guys, and the compliance, my company secretary, CS team as well. So this was my idea. This is what I'm working on from last 4 or 5 months. So if you have something to add here, or I'll come to my next problem, what I'm facing. No, I'll tell you, idea is good, but I bet you have not done any survey on this. Did you ask entrepreneurs whether they will take it or not? You need to do a survey. They will take it. You need to do a the survey. problem currently is at least 100 entrepreneurs have a survey, ask them. Right? Because as far as I know, people in India, they don't want to pay for such things, right? Even for legal services, they don't want to pay until and unless they are stuck into something, right? And this is something which is not becoming a product. For me, it's like a feature of a product. I can imagine, it might be clubbed into something which is day to day. Why would anybody keep this app in the phone? Suppose this is an app. Give me one reason why would anybody watch this and keep this app into the phone. So maybe this becomes a part of a HRIS system, or maybe the entire MIS could be a feature of something.
but it does not seems to be a full-fledged product to me as of now. Right? You need to think why somebody will keep this every day in the phone, why will not uninstall, and why people will use it. You need to have at least engagement time of 15-20 minutes. My point. So then only this something. Yeah. This is, well, we don't even keep Uber app, right? Uber and Ola app. So, because people like me, I might have used Ola and Uber maybe once or twice in my life. So why should I keep that app? And I've seen people, only for airport purpose. They don't need. Why should they keep that app, right? Similarly, there are certain apps which people just install that moment and uninstall. So, if that is the case, then it becomes really, really difficult to monetize that model. Take my point. What are you thinking? You want to get it monetized through other chartered accountants? It is a B2B product or B2C? It's a B2B product. We will sell it to the startups or to the enterprises. It will be an enterprise solution product where we won't be charging anything until unless it is up to 25 or 50 or 60 users. There will be only for one-time implementation fee, so very nominal, around 25,000 to 30,000 only. Then as the company grows, as the startup grows, and it keeps on hiring employees on a ESOP basis, because currently the trend is CTC plus ESOPs. Every startup and the ESOP is in the trend. Now every company is granting ESOPs, every company is managing ESOPs. And managing ESOPs manually is also not a very simple task when a company becomes a size of a Series A and Series B, where you have 100 and 150 employees. That's what I was thinking. It should become a part of the payroll software as a feature, not as a product. Getting my point? So maybe you can have an API system wherein you should make it for payroll companies. The applications which are into HRIS or payroll, you can give them an API access so that this becomes a feature of their system, and then they can pay you regularly. Right. I just want to add one more thing. Like there is a HRMS tool. I won't name it here right now. So they have just launched their product, and they are also into they are up to 20-25 customers right now. I have been in discussion with them right. So we are not adding just a feature in between the HRMS portal, but we are just giving a toggle. Like you want to switch to the ESOP and cap table product, or you want to switch to the proper HRMS table, because though it is linked to some of the HR functions, but for CAs, for finance guys, for the CFOs and for the CEOs, it will not be that relevant to only to the HRMS portal only, because it is though it is containing some information. I doubt if you give it as a toggle, there is a risk. Then the HRMS company will build their own tool, right? Because they don't want any other branding to get, right? So if you give them white label option, API integration which does not depict your brand, this would be a good integration for them. But if you think like that you want to promote your own brand, they might have challenges and they will build their own product later on. And this is going to happen definitely sooner or later. The moment you charge them more, they will definitely build their own product, because as a tech guy, I can tell you technical feasibility or the challenges are almost nil in making this particular product. It's a very simple one. It does not require any special skill like AI or ML. Very, very simple one. Anybody can make it. So that will also be a challenge for you later on. Because your customers might become your competitors. You need to discount that factor. Any follow-up question? No, not as of now. I've taken all your inputs and all your suggestions. I'll work on it as well, and then maybe later on some other Tuesdays I'll come with some more solution and more inputs to this. Definitely, it takes a lot of time. It takes a lot of time and lot of iteration. So you can't make the best product in one. So we have to keep on trying, making a lot of changes and modifications, and then only we can make the product. So experiment is the only way out. And I just want to confirm whether I was able to explain the use of this, because the use of this is not limited to only HR.
the CFO, the finance guy, the CEO, the investors, everyone is linked to this report, and this is on a daily basis update. A manual Excel file one can not rely on that, because I have been part of delivery, and there we have seen like how it is difficult to manage a ESOP program or cap table when you have 1,000 and more employees who you have given ESOPs, and they are leaving the employer organization on a daily basis. The vesting and investing schedule keeps on changing, where the every vesting and every exercise the cap table changes just because the ESOP has been converted into shares. So that was my idea. I hope I was able to convey it. I'm not concerned about the product, to be honest. Product is good, it is solving a problem. I'm concerned about the revenues and the challenges of your customer becoming the competitor. Getting my point? So these are the 2 points. It is solving a problem, especially for companies like delivery, Flipkart and all. It is solving a problem, and it is a good product indeed. But all I'm talking about is, what if your competitor or an HRIS where they get this feature made, then it's very difficult for you to even get this product in that company, because your competitor is already established, right? And nobody wants to stop their existing relationship. So that becomes a difficult part. So that is why I recommend you to easily, make it easy for them, so that they never think about making their own product. If you give your API and all, why would they make their own product, right? And if it is white label, then they will never have to think about anything. And later on, you can think of monetizing in different ways. Data is the new one. Probably you can start monetizing the data, right? Later, not right. And you need to have such kind of contract of data privacy, wherein that allows you to use the data. All right. Thank you. Next one. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure. Yeah, Sanjana. Okay, sir. Next we have Mr. Ashwini Agarwal. So please come forward and ask your question. Thank you, Ms. Sanjana. Thank you so much, Mr. Shishir, sharing this kind of platform where we can put up concerns and put the problems. Thank you so much, Mr. Shishir. I've never known about this. Yesterday only I've come to know that you're having some platform where we can share the problems. Pleasure, sir. I'm having almost 18 years of experience in job. From 2011 to 17, I was heading one of the Russian MNC company who into a payment solution like Paytm with the name of PayPal Services Private Limited. So I was heading that company, and I've took that company from 10,000 rupees business to 30 crore of monthly business. So at that point of time, it's actually I thought that I can make more money instead of salary. So I've started my own company in 17. And I took to a level of revenue A stage. I was making some money, but 2 mistakes I have done. My all technical things, actually it was outsourced. Okay. So I was in a risk of losing my data, the durability, because every time I have to approach them, that because they have many clients almost like me. They were developing things for 100 of companies. So my main problem is every time I have to approach them, request them to change anything, to integrate any API, to integrate, to change something in UI. So it was very difficult to approach them. They were asking money like anything. So I was a salesperson. I was actually a business analytical person who can run the company, but in technical I was very weak at that time. My second problem is I was alone. So that was a mistake. I had to do everything by my own. So I have lost almost my 20 lakh rupees. I have gained some money by selling it, but then I started a job in Oyo Hotel. I was managing a traveler's business. But now actually again I am associated with Bada Business, a Dr. Vivek Bindra initiative, and taking care of nationally their channel partner, they're taking care of sales operation for their 120 channel partner across India. But again, I'm thinking that the money which I'm making right now as a salary is not sufficient, and I want to fulfill my dreams which I have seen in 2017. So now I have found 2 of my friends, which is one is very good at hacker. What you mentioned, hacker. He's a technical guy. He's developing all the things again from the scratch, and it will be completed in next 1.5 months of time.
Second, I found one person who is actually will take care of my sales, the offline sales and online sales. And I'm a hustler who's monitoring everything from starting from to end. So I'm having 2-3 problems, and I'll ask you one by one that problem. The first problem is I'm afraid of sharing my business idea in a public domain. Matlab, if I'll approach to an investor, to my friend and family members to gain seed funding or any kind of help from them, a mentorship probably you can say. So I'm very afraid. I don't know how to secure my business, because yes, I have 2-3 competitors, but I have one unique USP which I have seen in Kazakhstan when I visited there in my Russian MNC. तो वहाँ पर वो चीज़ थी, but I'm really scared कि how to showcase, how to control, how to secure my business idea. मैंने market में if I'll in 1.5 month of time, suppose if I'll roll out this project in market, तो वो एकदम से तो बड़ा बनेगा नहीं. It will take time. और जैसे मैं उसको मार्केट में डालूंगा, मुझे ये डर है कि शायद कोई कंपटीटर उसको देख लेगा और इमीडिएटली, बिकॉज दे हैव नंबर ऑफ कस्टमर्स विद देम, दे विल इमीडिएटली रोल आउट दिस प्रोजेक्ट एट देयर ओन. तो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन मिस्टर शिशिर. देखिए, मुझे जब भी कोई ये ऐसी बात करता है कि मैं आइडिया को शेयर नहीं कर सकता या मेरे पास कोई सीक्रेट सॉस है, तो मुझे ना वो एक अफीम चाय वाला की याद आ जाती है. ठीक है, वो चाय में अफीम डालता था, बनारसी चाय वाला कानपुर शायद. हाँ, तो अफीम चाय वाला मैं नाम नहीं लूंगा, बस उसको ऐसी इसलिए वो चाय में अफीम डालता था और दुनिया पागल चाय पीने के लिए, लोग आते जाते थे. अच्छा, वो सीक्रेट सॉस किसी को नहीं पता थी, है ना. एक दिन उसने खुशी में बता दिया कि भाई मैं तो अफीम डालता हूँ. जूते भी पड़े और काम धंधा सब बंद हो गया. तो कहने वाली बात यह कि अगर एक कुछ ऐसी चीज होती है, अफीम है, तो किसी को बताने का कोई फायदा नहीं है. उसके अलावा सारे आइडियाज शेयरेबल होते हैं, बिकॉज आइडियाज हैव नो वैल्यू, जीरो वैल्यू. आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूशन की वैल्यू है. राइट? आइडियाज तो दुनिया के पास हैं, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बोलते हैं सर फेसबुक मैंने सोचा था. मैं आपको सच बता रहा हूँ, फेसबुक उन्होंने भी सोचा होगा और मेरे जैसे लोगों ने भी सोचा था. राइट? जो आज आप वो देख रहे हो ना, नई जो ट्रेन आई है जो मैग्नेट पे चलती है, ट्यूब वाली. राइट? दैट मैंने ये सोचा था बचपन में कि मैं 2 मैग्नेट से ट्रेन को हवा में उठा दूंगा, और एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया. समझ रहे हैं? तो नोबडी, सबके पास आइडियाज आते हैं और मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड बाय द राइट पर्सन. ठीक है? और इसका मल्टीप्लायर है, गुड आइडिया मल्टीप्लाइड बाय गुड एग्जीक्यूशन बाय द गुड पर्सन इज ऑलवेज सक्सेसफुल. लेकिन इसमें से एक भी अगर बैड हो गया तो मल्टीप्लायर नेगेटिव आएगा, आउटपुट विल बी नेगेटिव. पर्सन खराब तो भी नेगेटिव, आइडिया खराब तो भी नेगेटिव, और टाइम खराब तो भी नेगेटिव. देयर आर सर्टेन आइडियाज व्हिच आर अहेड ऑफ द टाइम, जब किसी को कुछ समझ नहीं आता. राइट? और कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो टाइम के बहुत पीछे होते हैं, वो तो टेक्नोलॉजी चली गई, ऐसा कुछ चला गया. तो आप, और सबसे बड़ी खराब बात है, यू डोंट इवन हैव एनीथिंग टू पेटेंट द आइडिया. कुछ नहीं है ऐसा सिस्टम, हो भी नहीं सकता. राइट? क्योंकि आइडिया ही है वो. तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ प्रोसेस आउट ऑफ इट एंड गेट इट पेटेंटेड, or you can create a product. If it is a product, you can get it patented. Most important part, because that is something that can protect you. The moment you get a patent, if it is really really good, if you think that this can change the world, right? अगर ऐसा कुछ है, आपको लगता है कि दुनिया बदल सकता है, तो आप सबसे पहले उसको इंडिया में पेटेंट कराइए, फिर चाइना में कराइए, और फिर यूएस में कराइए. राइट? क्योंकि ये चाइना वाले सबसे पहले कॉपी मारते हैं. ठीक है? अगर बहुत ही अच्छा कुछ है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने एक्चुअली ना ऑलरेडी इसको रोल आउट किया था, और रेवेन्यू जहाँ पे आप मेंशन करते हैं कि 50,000 से 5 लाख का मंथली रेवेन्यू होना चाहिए, मैं वहाँ तक पहुँच भी गया था. बट लेकिन बिकॉज ऑफ मैं अकेला था और वो सारा थर्ड पार्टी डिपेंडेंट था टेक्निकल चीज, तो आई स्टॉप दैट. आई डू नॉट वांट टू लूज द डाटा, तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया वहाँ पे. अब वो दोबारा सब कुछ दोबारा से मैं बना रहा हूँ विद मेरे पास 2 और डायरेक्टर्स हैं कंपनीज के, उनके थ्रू उसको बना रहा हूँ मैं. तो अब मैं डरता हूँ कि अब मैं दोबारा से वो गलती ना करूँ. मतलब देखिए, वो भी एक गलती है कि आप पूरा सीटीओ पे डिपेंडेंट हो जाओ, उससे बड़ी गलती तो कोई भी नहीं है.
सीटीओ या किसी पे भी, किसी व्यक्ति विशेष पे कभी भी पूरे 100% डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और वो हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत करते हैं। दूसरा, हम किसी पे मल्टी स्किल भी कराना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं भाई ये यही बंदा सेल्स भी कर लेगा, पोस्ट ऑफिस में जाके स्टैंप लगानी है तो वो भी कर लेगा। हम उसको बोलते हैं अरे कस्टमर आया जरा उससे भी बात कर लो, परचेज भी कर लो, राइट। सो यू गिव एवरीथिंग। आपकी तो पूरी चाबी तो आपकी उसके हाथ में दे देते हो, वो गलत है। कीप एवरीथिंग में आपको जो मेजॉरिटी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना वो अपने पास रखना है, राइट। तो वो जो राक्षस की जान तोते में ना, वो तोता अपने पास संभाल के रखना है, नहीं वो मिल गया तो वो फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे सब। दिस इज रियलिटी, ग्राउंड फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। और बहुत सबके साथ होता है, वो फाउंडर्स में ऐसा ही होता है। दूसरी बात, जो आपका ड्रीम है वो सबका ड्रीम नहीं होता। आप जिस चीज को आप किसी से पूछोगे कैसा लगा, वो बोलेगा अच्छा लगा, लेकिन वो शायद कभी भी उस तरह से एसोसिएट नहीं हो सकते, राइट। कभी भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो उनका सपना नहीं था, राइट। तो बेटर है ऐसे लोग ढूंढे जिन्होंने सिमिलर सपना देखा हो, सिमिलर ड्रीम देखा हो। एल्स इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। दे हैव मनी इन द माइंड, और हर बार पैसा नहीं आता है, हर बार तो नहीं आता है, कई बार बहुत कंसिस्टेंटली हमें काम करना पड़ेगा। तो ये रही बात आपकी उसकी। अब आइडिया पे वापस आ जाते हैं। तो आइडिया आप अगर किसी के साथ डिस्कस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप एनडीए कर लेंगे, एनसी-एनडी एग्रीमेंट कर लेंगे, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वो आइडिया किसी और को बता देगा, वो कर लेगा, चाचा के नाम से कर लेगा, ताऊ के नाम से। जिस कुछ सच में बहुत बढ़िया चीज है ना, तो कोई किसी को नहीं बताएगा। आप समझ रहे हो? जैसे वो आपको पता है वहां फला जगह खजाना पड़ा है, तो आप किसी को बताओगे थोड़ी, है ना। यू हैव टू हाइड इट। इफ इट इज रियली रियली गुड, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। खुद ही जाना है, खुद ही निकालना है, सब कुछ करना है। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देयर वाज अ क्लाइंट, मेरे एक क्लाइंट थे जो फंडिंग के लिए आए थे। उन्होंने ऐसी वैक्सीन बनाई थी जो एक बार एक इंजेक्शन में 5 बीमारियां दूर कर दे, इंक्लूडिंग कोविड के बाद की बात बता रहा हूँ, राइट। उनको कोई फंडिंग देने के लिए अच्छे इन्वेस्टर्स तैयार नहीं हुए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इतनी अच्छी चीज जिसकी डिमांड और औरों से बेहतर, राइट। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ हमने बात करी, मैं ऑर्गेनाइजेशंस का नाम नहीं लूंगा, फैमिली ऑफिसेस के साथ बात करी, और ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ बात करी जिनका काम ही यही है, जो बड़ी कंपनीज है जो वैक्सीन और इन सब फार्मा से रिलेटेड है। उन्होंने भी मना कर दिया। द रीजन वाज वेरी सिंपल कि ये बना तो लेंगे, लेकिन इन पे विश्वास कौन करेगा, राइट। मार्केट जब पहली वैक्सीन आई थी इंडिया में, तो किसी ने लगवाने को राजी नहीं था, विश्वास नहीं कर रहे थे। अब तब भी ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो विश्वास कर लिया लोगों ने। बट when something which is not so known comes into the market, it's very difficult for the consumer to trust, and that आपका सारा पैसा उस ट्रस्ट को बनाने में लग जाएगा, जो कि स्टार्टअप को कभी नहीं करना चाहिए। स्टार्टअप को सिर्फ डिसरप्ट करना है। डिसरप्ट क्या करना है कि प्रोडक्ट तो देखो बड़े वाला जैसा है, जो लीडर का है, मैं सस्ता दे रहा हूँ, राइट। तो आपका सब ले लेंगे, क्योंकि पैसे की सबको शॉर्टेज है, मिडिल क्लास को खासकर बहुत शॉर्टेज है, राइट। और मासेज, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास, वेल्थ लाइज, आपके विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं, है ना। मैं भी उनकी बात को मानता हूँ कई बार। वो बोलते हैं वेल्थ लाइज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, और बिल्कुल सच्ची बात है, ये सत्य है। वेल्थ जो है, 1 रुपए का जो गुटखे का पाउच बेचता है वो ज्यादा कमाता है, क्योंकि उसका 40% मार्जिन है। कोई पूछ नहीं रहा, 1 रुपए का लोग खरीद के खा के थूक देते हैं, राइट। यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका बार बार खरीदा जाता है क्योंकि वो थूक दिया खा के। बट व्हेन यू गो एंड बाय 1000 रुपीज प्रोडक्ट और 10,000 रुपीज प्रोडक्ट, आप 10,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदोगे, आप 50 तरह के फीचर पूछोगे, मार्जिन देखोगे, और उसमें मार्जिन कुछ नहीं है। मोबाइल फोन आप जो खरीदते हो उसमें 4-5%, 8-10% से ज्यादा मार्जिन किसी को नहीं मिल पा रहा, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वेल्थ लाइज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। जब हम इस तरह का कुछ काम है, तो हमारा काम क्या है? हमें कोशिश करनी है कि किसी बड़ी कंपनीज का जो प्रोडक्ट चल रहा है वो सिमिलर बना लें, बजाय कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी होगा तो शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंज्यूमर नहीं करेगा। तो आपको मार्केट, इसीलिए हम टैम सैम सॉम सब देखते हैं कि मार्केट कितनी बड़ी है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी नहीं है या शिफ्ट करने में आपको बहुत मुश्किल आएगी, तो अभी रुक जाना, राइट। इट इज नॉट द राइट टाइम।
क्योंकि जिसने सबसे पहले बताया था ना दुनिया गोल है और सूरज गोल है, उसको फांसी देती थी ये तो बकवास कर रहा है. Nobody understands, people don't. जब वो कोई ahead of the time चीज आ जाती है, लोग उसको समझ नहीं पाते, राइट? बहुत 90s के अंदर, 98, 99 के अंदर 2000 तक AI में बहुत सारे आइडियाज और कंपनीज आई, उनको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, कंज्यूमर ने नकार दिया, बाहर कर दिया. इट वाज अहेड ऑफ द टाइम, किसी को समझ कुछ नहीं आया और वो सारे प्रोडक्ट्स बंद हो गए, राइट? उससे घटिया प्रोडक्ट्स की आज फंडिंग हो रही है और अच्छे चल रहे हैं, बिकॉज अब अवेयरनेस हो चुकी है. सब एवरीबडी फॉलोज द ट्रेंड, राइट? ओनली लेस देन 1% ऑफ द पीपल कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, लेस देन 1%. और वही अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन पाते. तो आप तो वो समझ लोगे, आपका कंज्यूमर नहीं वो प्रेडिक्ट कर सकता. सो डोंट गेट अहेड ऑफ द टाइम. वी एज अ फाउंडर, हमें बहुत प्यार होता है अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने आइडियाज के साथ, और हम बहुत पैशन के साथ काम करते हैं. कोई बोलते ये नहीं चलेगा तो बुरा भी लगता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, नहीं क्यों चलेगा, हमने तो इतनी मेहनत करी है ना. तो मैं बड़ा केयरफुल भी रहता हूँ ये बताने में, एंड आई ट्राई टू बी एज डिप्लोमेटिक एज पॉसिबल. बट कुछ चीजें होती हैं जो अहेड ऑफ द टाइम है. तो मैंने आपका आइडिया नहीं सुना है, बट मैं आपको ये जरूर सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, तो आप जरूर देख लेना. इसके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट अगर बाजार में है तो बढ़िया है, नहीं है तो वो काम करो जिसका सिमिलर प्रोडक्ट बाजार में है, फटाफट से बेच पाओ, ज्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े बेचने में. प्रोडक्ट हमेशा वो अच्छा होता है जो फटाफट बिके, राइट? मार्जिन कम. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब मैं इसको लॉन्च करूंगा ना ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो आप ये मान के चलेगा सर, रेवेन्यू बी स्टेज जो आप बताते हैं, सोर्स ऑफ फंड, मतलब जो आपके फंडिंग टेबल के हिसाब से वेबसाइट के अकॉर्डिंगली, तो आई विल रीच टू अ रेवेन्यू बी मॉडल इन जस्ट 3 months ऑफ टाइम. तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर चुके हैं. और आप ये भी सर, मेरी विवेक बंद्रा के साथ हम लोग सेम कैबिन में ऑलमोस्ट हम 12-15 लोग मीटिंग डेली करते हैं. बट वो ना चिराग तले अंधेरा, आई कैन नॉट डिस्क्लोज माई बिजनेस आइडिया, और नौकरी से निकाल देंगे. तो वो वाला कंसर्न है. बट मेरे को ना फंडिंग फॉर मी फॉर सेकंड प्रायोरिटी. फॉर मी द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू हैव अ मेंटोरशिप टू बिल्ड अ कंपनी. तो मैं ना, मतलब इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू और टू इंटरेक्ट विद योर टीम मेंबर, आई एम इन नोएडा, कि मैं कहाँ पे, बिकॉज मैंने जॉब करी है ऑलमोस्ट फॉर 18 years, तो मैं एक बिजनेस बिल्ड करने में शायद वीक हूँ. मुझे ये नहीं पता कि बिजनेस सिक्योर कैसे करना है, कैसे उसको बिल्ड करना है, कैसे उसको एम्पायर में कन्वर्ट करना है. मैं 15 लाख रुपए का बिजनेस पर मंथ रेवेन्यू डाल सकता हूँ 3 महीने में, लेकिन फिर उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसमें क्या गैप्स होंगे, कैसे मुझे उसको एज अ कंपनी फॉर्म करना है, एज अ फाउंडर कैसे अपने 2 डायरेक्टर को भी मोटिवेट रखना है, कितनी % इक्विटी उनको देनी चाहिए, क्या मतलब वो सब चीजें मेरे को ना एक मेंटोरशिप चाहिए. दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी. मैं आपको एक सच बात बताऊं जी, मेंटोर कोई नहीं होता. मैंने भी बहुत कोशिश करी लोगों का मेंटोर बनने के लिए, पर खुद अपना हीरो खुद ही बनना पड़ता है, राइट? मेंटोर के दिमाग में, आपके दिमाग में मेंटोर के लिए जो एक्सपेक्टेशंस है वो कभी वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, और मेंटोर के दिमाग में जो आपके लिए एक्सपेक्टेशंस है ना, वो आप कभी फुलफिल नहीं कर पाओगे आपको, और एंड ऑफ द डे वो खराब हो जाता है. इसीलिए मेंटोर से बढ़िया होता है कंसल्टेंट. कोई मेंटोर, फैंटास्टिक वर्ड सर. कंसल्टेंट क्यों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो पैसे लेगा और एक डिलीवरेबल देगा. मेंटोर को आप सर करोगे, है ना, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, और मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो आप मेरे चक्कर में अपना नुकसान करते चले जाओगे. या कोई भी मेंटोर जिसके पास वक्त नहीं है. लॉट ऑफ पीपल गिव मी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे किसी ने बोला 10 लाख रुपए ले लो सर, मेरे को 1 साल मेंटोरशिप दे दो, 100 घंटे देना बस. मैंने मना कर दिया. इट्स नॉट अबाउट मनी, या इट्स नॉट अबाउट कि मैं हेल्प नहीं करना चाहता या किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता. इट इज अबाउट, मुझे पता है कि मैं कभी भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज क्लियर डिलीवरेबल्स नहीं है, राइट? हाँ, आई कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट और एनीबडी कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट. आप उसको डिलीवरेबल बताओगे, जैसे आपने बताया, उसको आप नोटिफाई कर लो. अब आप बोलते हो कि मुझे एचआर के सारे प्रोसेस बताएं, कैसे मोटिवेट करना है एम्प्लॉइज को, आपको उसके कंसल्टेंट मिल जाएंगे. वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे और आपकी टीम को भी ट्रेन करेंगे. अब ये सारी प्रॉब्लम्स यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ. मैं आपको अपना बताता हूँ हम क्या करते हैं. वी एट स्टार्टअप लेन्स, हमारा एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, परम ध्येय जो है, वो है देश के अंदर, अपने भारत के अंदर 1 million जॉब्स, यानी 10 million नहीं, 10 लाख जॉब्स, नौकरियां हम क्रिएट करें. 1 million जॉब्स क्रिएट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है, राइट?
और वो इसके थ्रू एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हुए। ये जब हम बात, व्हेन आई टेल दिस टू माय स्टाफ रिपीटेडली, उनको वो बहुत अच्छा लगता है। दे फील कि भाई हम इम्पोर्टेंट हैं, पैसा तो दुनिया कमा रही है, राइट। जब उनको ये पता लगता है कि हम भी उसका पार्ट है, हम देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं, दे फील हैप्पी अबाउट इट एंड दे फील एक्साइटेड अबाउट इट। उनको अच्छा लगता है ये चीज, और वो उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत भी करते हैं। और पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन जब आप उनको बताओगे कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप उनको हर किसी की एक इंपॉर्टेंस है, राइट। आज हम काम क्यों कर रहे हैं? हम काम रोटी कमाने के लिए तो सब कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को इंपॉर्टेंस भी चाहिए, राइट, अटेंशन भी चाहिए। सो इफ दीज थिंग्स, मैं सारा तो नहीं बता पाऊंगा आपको, बट आप जब काम करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स आती जाएंगे, आप प्रॉब्लम्स नोट करो, और उस तरह के कंसल्टेंट्स बाजार में हैं, वो सब आपको हेल्प कर पाएंगे। तो वो दैट इज द बेस्ट वे। किसी मेंटोर के चक्कर में, मैं तो खुद अपना भी बता रहा हूँ, किसी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मेंटोर जो अच्छा है उसके पास वक्त नहीं है, राइट। और जो अच्छा नहीं है, जिसके दिमाग में आपसे इक्विटी लेना, पैसा लेने का मन में आ रहा है ना, वो आपको कुछ भला नहीं कर पाएगा, और वो किसी के दिमाग से कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो पाता until and unless you think yourself like a pilot of the plane, right? किसी से पूछेंगे तो वो डुबा देगा, गिरा देगा, आपको खुद ही करना है। you can learn, decisions have to be yours। और आप अगर खुद के decisions लेंगे, खुद तैरेंगे पानी में, खुद सीख जाएंगे, खुद आपको मगरमच्छ से भी लड़ना आ जाएगा सब। you have to experience it to become better। ये बहुत सच बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज देखा है लाइफ में। मुझे भी लगता था कि मुझे किसी से कोई सीखने को मिल जाए या कोई मुझे गाइड कर दे। सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग होती है, सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, और हर सर्कमस्टांसेस में वो परफॉर्म नहीं कर पाते। सो यू कैन गेट ऑल दोज जनरल गाइडलाइंस, वो तो आपको मिल जाएंगी। सेम एज जो बिंद्रा साहब के ना बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, वो हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, राइट। सब चीजें बहुत अच्छी हैं, पर हर जगह नहीं हो पाती, क्योंकि सबकी स्टोरी अलग है, हर किसी का सिचुएशन बहुत अलग है। सो वी कैन नॉट से कि भाई उसमें वो भी फिट हो जाए। दैट इज व्हाई वी नीड टू एनालाइज द सिचुएशन, उसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ जितनी बार आप फेस करो। मैं तो देखो, आपको मैं एक अपनी बात बता सकता हूँ, मैं ना फेलियर को कम से कम 5-6 बार डिस्काउंट कर लेता हूँ कि 5-6 बार तो फेल होना ही होना है, राइट। तो मुझे जब मेरे को पहला फेलियर आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो बढ़िया, एक स्टेप तो आगे बढ़े, दूसरा आता है, तीसरा आता है, 5 तक, तो मुझे लगता है नाउ आई एम एबल टू। और ऐसा नहीं है कि मैं फेल होने के लिए आई प्ले टू फेल, नो, व्हेन आई प्ले आई ऑलवेज प्ले टू विन। मैं इसलिए नहीं खेलता कि मुझे हारना नहीं है या मुझे फेल हो जाना है। आई ऑलवेज डू थिंग्स टू बिकम सक्सेसफुल। बट मुझे पता है बड़े बड़े नहीं कर पाए, थॉमस एडिसन है ना, बड़े बड़े नाम थे बहुत सारे, उनको भी 10-10 हजार बार फेल होना पड़ रहा है, किसी को 100 बार होना पड़ रहा है। So that is okay while we are experimenting. It is not called failure. It is actually experiment is experiment. कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। हाँ, जब वो चलेगा या जब कुछ निकल के आएगा जो अभी तक नहीं हुआ है, वो शायद बहुत अच्छा होगा। इनोवेशन टाइम होने वाला, तो मैं आपको इनोवेशन की डेफिनेशन अपनी बता के जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से इनोवेशन सिर्फ 2 ही चीजों का इनोवेशन होता है, only 2 things, प्राइस एंड कन्वीनियंस, राइट। प्राइस सस्ता कर पाएंगे किसी भी प्रोडक्ट का, देन आई विल कॉल इट इनोवेशन। एंड आप किसी भी चीज की कन्वीनियंस बढ़ा पाएंगे तो देन आई विल कॉल इट इनोवेशन। दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ डिसरप्शन। डिसरप्शन में ये 2 ही चीजें हैं। प्रोडक्ट पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, प्रोडक्ट सिमिलर होमोजीनियस बनाइए। एग्जाम्पल, आप मैगी नूडल्स बना लो जिसका स्वाद, इंग्रेडिएंट्स, लुक, फील, टेक्सचर सब ऐसा आता है जैसे कि मैगी नूडल्स, और आप उसको मैगी नूडल से 4 रुपया सस्ता बेचना शुरू करो। देखो सारी दुकान जो मैगी बना के बेचते हैं ना, वो सब आपसे खरीदना शुरू कर देंगे इन नो टाइम, बिकॉज सेम है, इंग्रेडिएंट्स भी सेम होने चाहिए। सो इफ यू आर एबल टू मेक दैट सिमिलर प्रोडक्ट, होमोजीनियस, सेम, राइट, बता के बेचो। ऐसे नहीं कि बोलो मैगी जैसा नाम दिखा दो, नो, टेल देम दिस इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट बट सिमिलर लुक, फील, टेक्सचर, टेस्ट, एवरीथिंग, प्राइस लो, राइट। एंड कन्वीनियंस, दिस शुड बी मेड अवेलेबल ऑल्सो। मिलना भी तो चाहिए, कोई चीज हम बना लेते हैं और मिल नहीं पाए तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। सो कन्वीनियंस, कस्टमर तक, ग्राहक तक आपने वो पहुंचा दिया, सस्ता दे दिया जिसकी डिमांड ग्राहक को है, ठीक है। कुछ भी जो आप सुनते थे रोटी कपड़ा मकान के बिजनेस कभी बंद नहीं होते,
उसी में कुछ भी कर लें या किसी भी ऐसी चीज में जिसकी डिमांड है और वही प्रोडक्ट जैसा आपने दे दिया 100% चलेगा, 100%। कोई उसमें दो राह ही नहीं अगर मार्केट बड़ी है तो हमेशा लुक एट द बिगर मार्केट साइज, जिसका मार्केट साइज बहुत बड़ा हो और प्रोडक्ट होमोजीनियस, लीडर जैसा आपने प्रोडक्ट बना लिया। ज्यादा नहीं करने प्रोडक्ट्स, वो भी आपको नुकसान देंगे। मेक ओनली द प्रोडक्ट्स विच आर मेड बाय द लीडर्स एंड स्टार्ट सेलिंग फॉर अ लोअर प्राइस। इन केस दोज हु से कि मेरा प्रोडक्ट महंगा है और मैं बहुत बढ़िया हूं, उससे बेटर हूं, वो हमेशा नुकसान में जाते हैं, हमेशा, राइट। एक्सेप्शंस आर देयर, एप्पल हर कोई नहीं बन जाता, कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो एप्पल इज एन एक्सेप्शन, बट जनरली मेजॉरिटी ऑफ द entrepreneurs they face lot of difficulties in selling their product when they try to educate, जो आपने शायद पढ़ा भी होगा कि कस्टमर को एजुकेट कर दो, पर मैं नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट, आई नेवर एजुकेट, मैं उस पर दिमाग नहीं लगाता। जो ग्राहक को पता है फटाफट बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको भी बताया, चार्टेड अकाउंटेंसी सर्विस, लीगल सर्विसेज, हमने सब सस्ता कर दिया, जो क्योंकि उसको समझाने में भी ना जो कॉस्ट जाती है, जो टाइम पीरियड जाता है, दैट इज ऑल्सो आवर कॉस्ट। एक ही कस्टमर पे मैं 4 बार बात करके मैं समझा रहा हूँ 15-15 मिनट, तो मेरा 1 घंटा चला गया, राइट। वो कॉस्ट बचा लेंगे और उस कॉस्ट को सस्ता देके कवर कर लेते हैं। सो दैट इज व्हाट, टाइम इज ओवर, 2 बज गए, मेरी एक और मीटिंग है। आई एम थैंकफुल टू यू, ईच वन ऑफ यू। दिस इज थैंक यू सो मच, प्लीज हर बार आप जरूर आइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, एंड दिस इज एन ऑनर फॉर मी कि मैं आप लोगों को अगर कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर पाता हूँ। सर एक्चुअली बस एक लास्ट चीज थी कि अगर सपोज मुझे अपना आइडिया आपसे शेयर करना हो, कि आपको आइडिया शेयर करना हो, आपका फीडबैक लेना हो कि क्या आप आगे चल सकता है, तो इज इट पॉसिबल, मतलब एट योर प्लेटफॉर्म? देयर इज अ देयर इज अ पर्सनल कॉल सिस्टम, आप वहां पर स्टार्टअप प्लेन्स की साइट पे जा सकते हैं। अच्छा, हाँ देखा मैंने। हाँ, 1500 रुपीज लगते हैं, पर्सनल कॉल आपको बुक हो जाएगी। वो भी बहुत ज्यादा नहीं ले पाता हूँ मैं, तो शायद आपको बहुत कम स्लॉट मिलेंगे, तो ऐसा नहीं कि शायद इमीडिएट मिल जाएगा, बट आपको जरूर मिल जाएगा। एंड पीपल आस्क मी, मैं आपको बिना बताए तो आज पूछने लगे हैं कि भाई 1500 रुपए क्यों ले रहे हो, बात करने के पैसे क्यों ले रहे हो। तो बहुत सारी कॉल्स आती है, प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, तो प्रायोरिटी भी तो देनी है ना। तो ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, इनफैक्ट उसका हमने बैंक अकाउंट ही अलग तो चैरिटेबल पर्पस में यूज करते हैं जो पैसा आता है, बट प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी, नहीं तो ऐसे तो कोई भी कॉल और कभी भी करेगा तो बात करते किस से कर पाएंगे। दैट इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम और फील लाइक बुक दैट कॉल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एज पर द टाइम। अच्छा, कभी डेमो डे के लिए अपने आप को जाना हो कि डेमो डे में अटेंड करना हो या बताना हो, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन है सर? मतलब वो प्रिपरेशन तो मुझे मालूम है, सॉरी, उसके लिए एलिजिबल मतलब कैसे, कब हम उसके लिए अपॉइंटमेंट? देखिए, अभी तक हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये था कि 10,000 रुपए रेवेन्यू होना चाहिए, आप डेमो डे में मोस्ट वेलकम है। अब हम उसको भी एक और नए स्टेप पे जा रहे हैं, अब अभी हम इंक्यूबेशन खोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए हम आपको देंगे 10% की इक्विटी पे, वो भी हम नहीं रख रहे, वो इन्वेस्टर को देंगे। वी आर कमिंग अप विद दिस सिस्टम, बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, और शायद 10 लाख रुपए उसमें स्टार्टअप लेन्स भी लगाएगा, तो टोटल 20 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। 20% इक्विटी चली जाएगी, लेकिन उसके बदले में सब कुछ स्टार्टअप लेन्स की जो सपोर्ट का सिस्टम हम बना रहे हैं वो रहेगा। एंड दिस इज ओनली फॉर आइडिया स्टेज स्टार्टअप, जिनके पास सिर्फ आइडिया है, राइट। तो और अगर आप उस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, सो डू नॉट ओनली पार्टिसिपेट फॉर द फंडिंग, ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट आप ये सोच के करिए कि एज एन इकोसिस्टम एज अ होल हम जो स्ट्रक्चर आपको बना के देंगे शायद वो आपको आगे काम आए। फंडिंग तो नो डाउट, वी हैव द फंडिंग पाइपलाइन, पहले एंजल फंडिंग होगी, फिर वीसी फंडिंग होगी, और इट इज इन आवर गुड। तो 10 लाख रुपए हम भी अभी प्लान बना रहे हैं कि 10 हम डालेंगे, 10 इन्वेस्टर से डलवाएंगे, टोटल 20 लाख रुपए हम देंगे हर किसी फाउंडर को 20% इक्विटी पे, राइट, सो दैट एंड थिंग्स कैन बी वेरी केस टू केस बेसिस, राइट? यस, केस टू केस बेसिस, इवन पार्ट टाइमर्स। ये एक बहुत नोबल थॉट आया था मुझे, एंड आई डिड अ पोल फॉर दैट। मैंने सर्वे किया अपने लिंक्डइन पे डाल के कि भाई आप पार्ट टाइम में काम करना चाहेंगे अगर आपको 10 लाख मिले, और 700-800 लोगों ने अप्रोच करा। उन्होंने बोला कि साहब हम बिल्कुल करना चाहते हैं, हमें डर लगता है, हमें मौका नहीं मिल रहा, हम नौकरी के साथ साथ वो कर नहीं पाते, हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ से भी जाएं और वहां से भी जाएं, बिजनेस भी नहीं चला और नौकरी से भी गए तो फिर क्या करेंगे।
राइट. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, लोगों को पता नहीं है, एक सिस्टम होता है स्टार्टअप में, उसको स्टेल्थ मोड बोलते हैं या स्टील्थ मोड, जो भी आप बोलना चाहे, हिडन. उसमें छुप छुप के कंपनी का नाम वाम बाहर नहीं करा जाता, लेकिन सब. और बैंगलोर में, सिलिकॉन वैली में भी बहुत सारे लोगों ने यूएस में ऐसे काम किया है, जॉब भी कर रहे हैं आईटी कंपनी में और साथ साथ अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जब चल पड़ता है तो बाहर ले आते हैं. एंड दिस इज गुड फॉर द कंट्री. देश के लिए बहुत अच्छी बात है, चाहिए देश को ये. क्यों? क्योंकि अब जब तक अगर हर बंदा नौकरी मांगेगा तो नौकरी आएंगी कहाँ से? तो ऐसा सोच बहुत जरूरी है कि सब ट्राई करें, जॉब में लोग ट्राई करें कि हम व्यापार करें, बिजनेस करेंगे. 4-5 लोगों को भी हायर अगर कर लिया ना, तो भी हम 5 टाइम्स जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, जो अभी हमारा करंट स्ट्रक्चर है. पैंडेमिक में बहुत बुरा हाल हो गया था, सबने देख लिया. लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स. सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी. इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं. मैं ये नहीं कहता कि सबको फंडिंग मिल जाएगी, बट एटलीस्ट बहुत सारों को मौका मिल जाएगा, राइट, कि वो पिच करके आए, फिर दोबारा कोई नया आइडिया स्टेज पे ही शुरू कर रहे हैं. बिल्कुल टोटल आइडिया, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आइडिया लेके पिच कर रहे हैं. बट एक उसके अंदर चैलेंज है कि आइडिया जनता में जाएगा, वो पब्लिक, बिकॉज लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स विल बी देयर. दिस माइट गो टू आवर यूट्यूब चैनल, राइट. तो उससे और ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे. और 10 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है. हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि 10 लाख में होगा क्या, बट 10 लाख में भी बहुत सारे बिजनेस हो जाते हैं. इनफैक्ट 20 दे रहे हैं हम. 10 लाख रुपए आपको देंगे कैश में और 10 लाख रुपए देंगे काइंड में, कि आपकी वेबसाइट में, ऐप में, मार्केटिंग में, इन सब में लगा दिया. नहीं तो क्या है, 10 लाख रुपए कोई ऐसे ही खत्म ना कर दे. ऐसे भी होते हैं जो बच्चे आ जाते हैं. लेकिन सर, अगर कोई प्रोडक्ट रेडी वाले स्टेज पे या अर्ली ट्रैक्शन वाले रेडी पे, तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म है ना? अगर आप आइए, 10,000 रुपए रेवेन्यू, 2 सेगमेंट मैंने आपको बता दिए, आइडिया वाला अलग है, एंड दिस इज द करंट सेगमेंट जिसमें रेवेन्यू 10,000 होना चाहिए आपका मंथली, कम से कम. आप आइए, आपको डेट मिलेगी डेमो डे की, एक मैंडेट होगा साइन, उसमें हम लीड भी बन जाएंगे आपके. लीड बन गए तो हम अपने थ्रू तो फंडिंग कराएंगे, बाकी एंजल नेटवर्क्स, वीसी से भी फंडिंग जोड़ के उनको साथ में लाके आपकी फंडिंग कराएंगे. पहली फंडिंग आप 25 लाख रुपए टारगेट करिए, फिर 50, फिर 1 करोड़, फिर 2.5 करोड़ या 2 करोड़, एंड देन 3.5 करोड़, अप टू 500K, राइट. $500,000 जाने के बाद फिर आपकी वीसी फंडिंग $1 मिलियन से शुरू होगी. इन दैट पर्टिकुलर टाइम यू नीड टू हैव अ प्लान. आपका ऐसा सोच ऐसी होनी चाहिए, या मार्केट इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आने वाले 5 साल में आप 750 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, रेवेन्यू क्रॉस कर दें. आपको वैल्यूएशन के हिसाब से $1 बिलियन के वैल्यूएशन आने के चांसेस रहे. मैंने 10 टाइम्स का फैक्टर लिया है, बहुत ही प्रोग्रेसिव लिया है, ये मान के कि बहुत अच्छा है. तो 750 से 1000 करोड़ का रेवेन्यू 5 साल में आएगा तो यूनिकॉर्न बन जाएंगे, और उसी बेसिस पे आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा दे देंगे. बहुत सिंपल सा है. Well noted. Well, I'll definitely approach you once I'll reach to a product ready stage. मैं आपको अप्रोच करूंगा सर. All right. Thank you so much for joining in. This is Shishir valuable Gupta. session. Jai Bharat. जय भारत. Thank you so much, everyone. Thanks a lot.